Assalamualaikum. But in this video lecture, I will deliver another chapter of the ophthalmology series of lectures, and it's a cornea. It's really important part of the eye to discuss. It's everything related to cornea. Let me tell you, beta, as you know that if you look at the structure of the eyeball, you will come to see that this is the cornea at the outermost, and here comes in continuation the sclera, right? This is sclera, and okay, and here inside comes the another layer of the eyeball, that is the choroid, and here comes the neural layer, that is the retina, right? So if you see the outermost layer, this is the sclera and this is the cornea, right from here till there. And you can see this cornea is making up the anterior part, and anterior 1/6, एक छटाई हिस्सा, ठीक है. And this sclera is making up the posterior 5/6 of the eye, right? So cornea, it's a convex structure, ठीक है. It's a transparent structure, यहाँ से light pass होती है and forming the anterior 1/6 of the eye, right beta? Isn't it easy? It is. Okay, now after this, let me tell you the dimensions of the cornea. If I take that beta, anteriorly it is about 11.5 millimeter vertically, and horizontally अगर देखें यहाँ से यहाँ तक जो है, this is 12 millimeter, right? ये याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है आपको. Okay, आगे से, और posteriorly it measures about 11.7 millimeter, the corneal diameter. You just have to read this, don't have to remember it at all. Anteriorly the dimensions are a little different, posteriorly the dimensions are a little different. Anteriorly, if we talk about the corneal diameter, it is 11.5 millimeter vertically and 12 millimeter horizontally, and posteriorly it's 11.7. What about the shape of the cornea? The shape of the cornea, if I tell you, yeah, okay, where is the cornea? There we go. This is the cornea from here till there, and if you see that the central 1/3, that is this part of the cornea, that is the central 1/3 part, that is almost around 4 millimeter. It is spherical, and this part, the periphery of the cornea, is more flatter. This is more flatter, not more spherical. So we talk about this cornea, then the central part of this cornea, which is around 4 millimeter, it is more spherical. As you can see, it is more spherical, and the two peripheries of the cornea are flatter, right? It's very easy. What about the thickness of the cornea? Cornea is thinnest at the center. This part of the cornea, which is more spherical, it is thinnest part. ठीक है, यहाँ पे थिकनेस होती है 0.5 मिलीमीटर. ये याद रख लें तो आई थिंक इनफ है, बाकी कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. थिकनेस यहाँ पे स्फेरिकल जो रीजन होता है, सेंट्रल पार्ट, इस पे बहुत कम थिकनेस होती है और बहुत थिन पार्ट होता है, एंड इट इज़ अबाउट 0.5 मिलीमीटर थिकनेस, एंड द थिकनेस इंक्रीजेस ग्रेजुअली ऑन बोथ द साइड्स, राइट, फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी. और यहाँ पे कितनी थिकनेस बताई थी? 0.5, तो पेरीफेरी पे 0.65 to 1 मिलीमीटर तक थिकनेस होती है. ठीक है बच्चों, इस तरीके से corneal thickness is very important for diagnosis of different pathologies of the cornea. इसलिए मैंने कहा कि थिकनेस याद रखना, बाकी जो चीज़ें डायमेंशंस वगैरह याद ना भी हों, थिकनेस याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन है जैसे कि केराटोकोनोसिस में कॉर्निया की थिकनेस बहुत कम हो जाती है, कॉर्निया बहुत थिन हो जाती है. और प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा, और जो लेज़र सर्जरी करते हो आप, रिफ्रैक्टिव लेज़र सर्जरी, ये ऐसी कंडीशन है जिनमें कॉर्निया की जो थिकनेस है वो अल्टर हो जाती है, तो नॉर्मल थिकनेस पता होनी चाहिए है. ठीक है बेटा, इस तरीके से. द रेडियस ऑफ कर्वेचर, we don't have to remember each and everything, but we can see that the refractive index of your cornea is 1.376. This is what you have to remember, the average refractive index. ठीक है, because cornea is a transparent structure, it has refractive index of 1.376. The light rays can come across this cornea and can be focused onto the retina. ठीक है, इस तरीके से. That's it. That was the refractive index.
the refractive power, that ability to refract the light, the power to allow the light rays to cross the cornea and enter into the eyeball, that is the refractive power, and average refractive power of the cornea is 43 diopters plus. Okay, so yeah, this is what you have to remember. The refractive index 1.376, refractive power 43 diopters in plus. ठीक है, इस तरीके से इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट मैंने फिर आई की पूरी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई है, उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो कॉर्निया की एपिथेलियम होती है वो आती है सरफेस एक्टोडर्म से, लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे कि स्ट्रोमा और एंडोथीलियम, दे डेवलप फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, नॉट द सरफेस एक्टोडर्म। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी सरफेस एक्टोडर्म से ही आते हैं, लेकिन in the end they are the separate entity, right? If you talk about the structure of the cornea, you can see this is the entire cornea from inside to outside, and this is the cornea, this is the magnified view, this is the most inner part, this is the most outer part. You can see the layers. The innermost layer is the endothelium, then comes this nice little layer, this is the Descemet membrane, and the chunk of the cornea is this is the stroma, made up of the collagen fibers, and then comes the Bowman's layer, and then finally the epithelium. Let's talk about all the layers. The very first layer is the epithelium. What sort of epithelium is this? Non-keratinized, there is no keratin, stratified squamous epithelium. You have to keep it in your mind, don't forget. epithelium कौन सी है? नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. ठीक है, इस एपिथेलियम के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं. ठीक है, ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ना, नॉन केराटिनाइज, इसमें एक होते हैं बेटा बेजल सेल्स. कौन से होते हैं? या बेजल सेल्स. एक होते हैं विंग सेल्स, और उसके अलावा विंग सेल्स के अलावा होते हैं बेटा सरफेस सेल्स. ठीक है, द बेजल सेल्स, they are actually the columnar cells, they lie on the basement membrane. उसके बाद विंग सेल्स होते हैं, और तीसरी टाइप होती है सरफेस सेल्स की. ये होते हैं कॉलमनार नहीं, ये होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस सेल्स. ठीक है, इनके पास माइक्रोविलाई भी होते हैं. दे आर इन कॉन्टेक्ट विद द टीयर फिलिप. सो इफ़ आई ड्रॉ द एपिथेलियम, वैसे तो नीचे से लेकर ये पूरी अगर फ़र्ज़ करें आपकी कॉर्निया है, सबसे नीचे होती है एंडोथीलियम, फिर डेस्कीमेंट मेम्ब्रेन, फिर स्ट्रोमा आता है, फिर बॉमेंस लेयर. ये है आपकी सबसे ऊपर एपिथेलियम. ठीक है, एपिथेलियम में तीन तरह के सेल्स होते हैं. जो सबसे नीचे वाले सेल्स होते हैं, फिर बीच में सेल होते हैं, और जो सबसे ऊपर होते हैं. जो सबसे नीचे वाले सेल्स होते हैं वो होते हैं बेजल सेल्स. ठीक है, और ये कॉलमनार वैरायटी के सेल्स होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं. ठीक है, बीच में आते हैं विंग सेल्स, और सबसे ऊपर आते हैं सरफेस सेल्स. सरफेस सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस वैरायटी के होते हैं. उनके पास माइक्रोविलाई भी होते हैं, और आगे आपको पता है टीयर फिल्म होती है. तो या द माइक्रोविलाई and these surface cells are in contact with the tear film. ठीक है बेटा, इस तरीके से. A very interesting thing is one different type of cells, the limbal stem cells. They are located not completely in the cornea, but they are located at the limbus. You understand what's the limbus? If I tell you from here, so this is the cornea, this is the sclera on both the sides. Really healthy eyeball. This is the level of the limbus. इस लिम्बस के रीजन पे एक तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, उनको कहते हैं लिम्बल स्टेम सेल्स. लिम्बल स्टेम सेल्स, एज द नेम इंडिकेट, दे आर एक्चुअली द स्टेम सेल्स, राइट? एंड व्हाट डू दीज स्टेम सेल्स डू? They are the stem cells. They keep on dividing, they keep on multiplying to replace the old cells. And if there is damage to the limbal stem cells, it will lead to the chronic epithelial defect and the conjunctivalization of the corneal surface. एक बात आप समझने की कोशिश करें, मैंने यहाँ बताया आपको, ये लिम्बस है, लिम्बस पे लिम्बल स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं. ये डिवाइड करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, इनमें माइटोसिस होती है. तो यहाँ पे जो कॉर्निया के पुराने सेल्स होते हैं वो निकलते जाते हैं, और नए सेल्स यहाँ पे बन के, स्टेम सेल से नए सेल बन के यहाँ पे आते जाते हैं. ठीक है, तो पुराने सेल बाहर जा रहे हैं, नए सेल बन के यहाँ पे आ रहे हैं. लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये लिम्बल स्टेम सेल्स ही आपके ख़राब हो जाएं, तो क्या नए सेल आ पाएंगे? नए सेल नहीं आ पाएंगे. तो जो एपिथेलियम है आपके कॉर्निया की, वो डिफेक्टिव हो जाएगी, और एपिथेलियम इतनी रहेगी नहीं, सिर्फ आगे से कंजक्टाइवा रह जाएगा. तो उसको हम कंजक्टिवलाइजेशन कहते हैं.
समझ आई बात। पुराने सेल बाहर जाते हैं, नए सेल बन के स्टेम सेल यहाँ आते हैं। अगर स्टेम सेल ख़राब हो जाए तो आपकी जो एपिथेलियम है ना बेटा, वो ज़ाहिर डिफेक्टिव हो जाएगी। जब नए सेल ही नहीं आएगा तो ज़ाहिर डिफेक्टिव हो जाएगी ना। तो इतनी थिन हो जाएगी वो एपिथेलियम के आगे सिर्फ कंजक्टिवा रह जाएगी, इसको हम कहते हैं कंजक्टिवलाइजेशन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। And the corneal epithelium in general, it is relatively impermeable to water due to the presence of tight junctions between the cells, right? It's a very interesting thing to know. You got cornea in your eye, it is impermeable to water, does not allow water to get into the eye. Epithelium के बाद comes the another layer, that is the Bowman's membrane. Is number 2 right here. This is the Bowman's membrane. Okay, this is the Bowman's membrane. This layer is acellular. It's only made up of the collagen fibrils, no cells at all. और इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन भी नहीं होती। एक बार डैमेज हो गई तो डैमेज हो गई और रीजनरेट नहीं करती। उसके बाद स्ट्रोमा आता है, जिसको हम लेमिना प्रोप्रिया भी कहते हैं। 90% ऑफ द थिकनेस ऑफ द कॉर्निया इज ड्यू टू द स्ट्रोमा। ठीक है, इसमें भी कोलेजन फाइब्रिल्स होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन मिलेगा, राइट। इसके अंदर केराटोसाइट्स मौजूद होते हैं जो कि मुसलसल कोलेजन प्रोड्यूस करते रहते हैं, क्योंकि स्ट्रोमा मोस्टली जो है उसके अंदर मेन चीज़ जो है वो कोलेजन ही है। देन कम्स द डेस्कीमेंट मेम्ब्रेन। डेस्कीमेंट मेम्ब्रेन, लेट मी टेल यू बेटा, दिस इज़ द सेकेंड लास्ट लेयर। उसके बाद एंडोथीलियम आती है। डेस्कीमेंट मेम्ब्रेन इट्स एक्चुअली द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथीलियम, राइट। इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथीलियम, क्योंकि एंडोथीलियम सबसे लास्ट लेयर है, उसके जस्ट ऊपर डेस्कीमेंट मेम्ब्रेन है। तो दिस इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड इट टर्मिनेट्स एट द पेरीफ्री एज अ प्रोमिनेंट लाइन कॉल्ड द शॉल्बेस लाइन। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आगे मैं चल के बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे अगर हम ड्रा करें, ये कॉर्निया है आपका बेटा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसकी लेयर्स है ना, कौन कौन सी लेयर्स हैं आप देखो। सबसे ऊपर एपिथेलियम है, उसके नीचे है आपकी बॉमेंस लेयर। बॉमेंस लेयर के बाद जो है ये एपिथेलियम हो गई, ये बॉमेंस लेयर हो गई, ये पूरा स्ट्रोमा हो गया। ठीक है, स्ट्रोमा के नीचे आती है डेस्कीमेंट मेम्ब्रेन, डेस्कीमेंट मेम्ब्रेन के बाद आती है एंडोथेलियम। दिस इज द सरफेस एपिथेलियम। व्हाट इज दिस? दिस इज द बॉमेंस लेयर, दिस इज द स्ट्रोमा, दिस इज द डेस्कीमेंट मेम्ब्रेन, मोर लाइक अ बेसमेंट मेम्ब्रेन टू दिस एंडोथेलियम। ठीक है, और ये जो है ना डेस्कीमेंट मेम्ब्रेन, ये आगे इसको हम कुछ इस तरीके से ये कंटिन्यू होती है, इसको हम शॉल्बे लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉल्बे लाइन। इसकी अहमियत है काफ़ी, इसकी आपको अहमियत ग्लाउकोमा के लेक्चर में समझ आएगी। ठीक है, फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड दिस इज द डेस्कीमेंट मेम्ब्रेन, दिस एक्सटेंशन, दिस शेडो इज द शॉल्बे लाइन, राइट। ओके, विल टॉक अबाउट दिस बेटर इन द लेक्चर ऑफ द ग्लाउकोमा, राइट बेटा। और दिस इज आल्सो यू नो नॉट एबल टू रीजनरेट, ठीक है, जस्ट लाइक द बॉमेंस मेम्ब्रेन। टॉकिंग अबाउट द एंडोथेलियम लास्टली, इसके अंदर हेक्सागोनल सेल्स होते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। इट मेंटेन द डिहाइड्रेशन ऑफ द कॉर्निया। आपको अगर मैं बताऊं बेटा कि ये कॉर्निया है ना, कॉर्निया के पीछे क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं? ये आयरिस हो गया, ठीक है, ये लेंस हो गया, ये सीलियरी बॉडी हो गई। यहाँ पे आपका एक्वस ह्यूमर बनता है और एक्वस ह्यूमर यहाँ से बन के यहाँ इस एंगल में ड्रेन हो जाता है। तो आगे आपकी जो ये कॉर्निया मौजूद है, उसकी अंदर वाली लेयर जो होती है एंडोथेलियम, वो बिल्कुल इम्परमेबल होती है, इस एक्वस ह्यूमर को अंदर नहीं आने देती। ठीक है, ये एंडोथेलियम ही है जो एक्वस ह्यूमर को अंदर नहीं आने देती, और ये एंडोथेलियम ही है जो कि कॉर्निया को डिहाइड्रेट करके रखती है, या नीचे से पानी को अंदर नहीं जाने देती। नीचे से पानी अंदर नहीं जाता कॉर्निया में, तो कॉर्निया डिहाइड्रेट रहती है। ठीक है, यहाँ से आपका एक्वस ह्यूमर बनता है, सीधा यहाँ ड्रेन हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्यों नहीं जा पाता कॉर्निया में? क्योंकि नीचे एंडोथेलियम है, वो प्रोटेक्ट करके रखती है एक्वस ह्यूमर को, अंदर नहीं जाने देती कॉर्निया में, जिसकी वजह से कॉर्निया डिहाइड्रेट ही रहता है। ठीक है, अगर एंडोथेलियम डैमेज हो जाए तो क्या होगा? दोबारा यहीं पर आओ। अगर देखो ना बेटा, ये आपकी एंडोथेलियम है, सबसे अंदर वाली लेयर। अगर एंडोथेलियम डैमेज हो जाए तो क्या होगा? एक्वस ह्यूमर जो यहाँ पे बन रहा है, नो डाउट यहाँ पे ड्रेन तो होगा, लेकिन कुछ ऐसा उसका एंडोथेलियम क्योंकि डैमेज है तो वो कहाँ चला जाएगा? कुछ ऐसा कॉर्निया में चला जाएगा एक्वस ह्यूमर का, तो कॉर्निया के अंदर पानी जमा हो जाएगा, तो कॉर्नियल एडीमा हो जाएगी। समझ आई बात? इस तरीके से। एंड दिस एंडोथेलियम इज आल्सो अनेबल टू रीजनरेट जस्ट लाइक द डेस्कीमेंट मेम्ब्रेन एंड द बॉमेंस मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। व्हाट अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द कॉर्निया? कॉर्निया इज एवेस्कुलर स्ट्रक्चर, तो फिर ब्लड सप्लाई कहाँ से आता है? लिम्बस में वेजल्स होती हैं, लिम्बस से आता है एक तो कॉर्नियोस्कुलर लिम्बस जो होता है। ठीक है,
बिकॉज द कॉर्नियोस्कुलर लिम्बस इज सप्लाइड बाय द पेरीलिम्बल प्लेक्सस। कहने का मकसद जो कॉर्निया इटसेल्फ जो है ना वो ए वस्कुलर स्ट्रक्चर है, कॉर्निया इटसेल्फ इज द ए वस्कुलर स्ट्रक्चर, लेकिन जो लिम्बस का रीजन है ना ये वाला रीजन, यहाँ पे ब्लड सप्लाई आती है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? कॉर्नियोस्कुलर लिम्बस पे कहाँ से आती है? पेरीलिम्बल प्लेक्सस से आती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। राइट बेटा। नर्व सप्लाई लेट मी टेल यू, ऑप्थेल्मिक ट्राइजेमिनल नर्व की एक डिवीजन है ऑप्थेल्मिक की ब्रांच है लॉन्ग सिलियरी नर्व, एक ये सप्लाई करती है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कॉर्निया इज द मोस्ट डेंसली इनर्वेटेड टिश्यू इन द बॉडी। काफ़ी अच्छा नर्व सप्लाई होता है कॉर्निया का, काफ़ी अच्छा डेंसली इनर्वेटेड टिश्यू है पूरी बॉडी के अंदर। सही है। व्हाट अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ द कॉर्निया? ब्लड सप्लाई तो आ नहीं रहा कॉर्निया को, तो फिर कहाँ से न्यूट्रिशन मिलती है? एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियरली एंड द टीयर्स एंटीरियरली। आपको अच्छे से पता है कि इसके पीछे बेटा दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है तो पीछे एक्वस ह्यूमर इसको कॉर्निया को नरिश करता है और आगे टीयर्स होते हैं वो इस कॉर्निया को नरिश करते हैं। कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन रहती है? एक तो एक्टिव एंडोथेलियल पंप मैकेनिज्म होता है, अरेंजमेंट ऑफ द एपिथेलियल एंड द एंडोथेलियल सेल्स। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, अगर कॉर्निया के अंदर पानी जमा हो जाए या ब्लड जमा हो जाए तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो उसमें से लाइट पास नहीं होगी उससे। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो कॉर्निया है वो कम्प्लीटली डिहाइड्रेट रहे, उसके अंदर ज़्यादा ब्लड स्टेसिस ना हो, ज़्यादा पानी जमा ना हो। ठीक है, एक्वस ह्यूमर ना आ जाए। अगर गलती से एक्वस ह्यूमर आ गया कॉर्निया के अंदर तो कॉर्नियल एडिमा हो जाएगा, लाइट पास नहीं हो पाएगी वहाँ से। तो अंदर एक्वस ह्यूमर ना आए कॉर्निया में, इससे कौन बचाता है? एंडोथेलियम। पीछे एंडोथेलियम के पास पंप मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जो कि अगर अंदर पानी आ भी गया तो उसको बाहर निकाल देता है ताकि कॉर्निया कंप्लीटली डिहाइड्रेट रहे। इसी तरीके से ना सिर्फ एंडोथेलियल सेल बल्कि एपिथेलियल सेल भी पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावा जो अंदर कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं खास करके स्ट्रोमा के अंदर, वो रेगुलरली इस तरीके से ओरिएंट होते रहते हैं, अपनी जगह अपनी स्पेसिंग करते हैं ताकि किसी किस्म की फ्लूइड एक्यूमुलेशन ना हो कॉर्निया में, और कॉर्निया फ्री ऑफ वाटर रहे, फ्री ऑफ फ्लूइड रहे, ताकि उसमें कोई पानी जमा ना हो और लाइट पास हो सके, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट रहे। इसी तरीके से एब्सेंस ऑफ द ब्लड वेजल्स एंड लिम्फेटिक्स नहीं होती, ब्लड वेजल्स नहीं होती, इसकी वजह से कॉर्निया कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक है बच्चों। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया? कॉर्निया इज द मोस्ट पावरफुल it acts as a, sorry, I'm wrong, my mistake. It acts as a powerful refracting lens in the eye. रिफ्रैक्टिव पावर इसका कितना था? 43 डायोप्टर। ये लेंस तो नहीं है ऑब्वियसली कॉर्निया, लेकिन एक लेंस का ही काम कर रहा है ना समहाउ, क्योंकि यहाँ से लाइट आती है, लाइट आने के बाद अंदर चली जाती है, यानी रिफ्रैक्ट हो जाती है, इसको लग के वापस लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर जाती। अगर ये आपका कॉर्निया है तो लाइट आती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती, अंदर आके रिफ्रैक्ट हो जाती है, फिर लेंस से गुजरती है, फिर लेंस से आगे आगे रेटिना पे फोकस हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। विल बी नाउ टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया, दैट इज केराटाइटिस।